Hey guys, welcome back to my channel. It's me Devrati. Hope all you are doing good, and I'm back with another video that is about 12 frequently asked questions in cabin crew interview. So guys, are you ready? So let's get started. Here is the first question. Why do you want to work for this airline or about aviation industry? So you have to mention the advantages of a particular airline. Like you can say that it delivers a good customer service, or it delivers a courteous and hassle-free experience. Like if HR asked you that why only Vistara, you can mention the advantage of Vistara, like it is the collaboration of Ratan Tata and Singapore Airlines, and I'm the big fan of the Ratan Tata as he has done so many efforts for everyone. So I want to work for this airline. Or you can or guys, you can Google it on their website about particular airlines. जाके उनके वेबसाइट पर देख सकते हैं क्योंकि वो इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट देयर एयरलाइन. सो यू कैन गूगल इट ऑन देयर वेबसाइट. सेकेंड क्वेश्चन इज़ what is your hobby and tell me what you do in your free time. So you have to tell your hobby and you have to give reason also why you love that hobby. For example, you mentioned that you love listening to music, and you have to say why you love to listen to music and what kind of music you love to listen. And if you mention you love traveling, so you have to mention what's the reason why you love traveling. So whenever the HR asks this question, what is your hobby or what do you do in your free time, you have to mention the hobby plus what's the reason behind it. The third question HR asked is, are you willing to travel or relocate? So if this question asked to you, then you always have to mention yes, I'm willing to travel or relocate as I'm in aviation industry and traveling is a part of my job. Guys, this shows that you are extremely adaptable and flexible. गाइस, ये हर बार का इनका क्वेश्चंस रहता है. भले HR राउंड में ये पूछते हैं कि आर यू विलिंग टू ट्रैवल और रिलोकेट, तो मैंने आपको आंसर बता दिया कि आपको किस तरीके से आंसर करना है. Hire you. Next question is, why should we hire you? If HR asks you this question, then you have to mention your qualities that matches this profession. For example, you can mention that you have a good people skill, you love interacting with people and getting to know them. This shows that you can build rapport easily. And second thing, you can mention that you are a hard worker and you can go above and beyond for the passengers. Question is, what is the role and responsibilities of a cabin crew? गाइस, अगर आप कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कैबिन क्रू के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होते हैं. वैसे भी दे आर देयर फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर द पैसेंजर्स, आप उनको ऐसे बता सकते हो. सिक्स्थ क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. गाइस, अक्सर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं HR राउंड में कि व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. तो आपको अपने स्ट्रेंथ मेंशन करने हैं. स्ट्रेंथ मीन्स योर क्वालिटी. स्ट्रेंथ भी एक आपकी एक क्वालिटी होती है कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है. फॉर एग्जाम्पल, यू आर फिजिकली फिट एंड यू कैन रिमेन काम इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन. देखिए, आपको वही स्ट्रेंथ बोलने हैं जो इस प्रोफेशनल से मैच करता हो, और आपको वीकनेस भी ऐसे बताने हैं जैसे आपके कमजोरी तो हो लेकिन वो नेगेटिव एस्पेक्ट में ना हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू कांट से नो टू एनीवन इफ़ समवन आस्क फॉर हेल्प. आप ऐसे भी बोल सकते हो. देखिए, इस आंसर में क्या है कि आप कमजोरी भी है कि आप अगर कोई आपसे मदद मांगने के लिए आ रहा है तो आप उनको ना कह सकते. आपकी कमजोरी भी है प्लस इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, तो आप ऐसे करके आप अपना वीकनेस बता सकते हो. सेवन क्वेश्चन इज़, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू. गाइस, कुछ लोग आंसर ये देते हैं, आई लव ट्रैवलिंग, ये मेरा ड्रीम जॉब है, ये वगैरह वगैरह. तो ये आपको आंसर नहीं देना है. और गाइस, मैंने इसका पर्टिकुलर एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए आप कैसे आंसर दे सकते हो. तो मैं इस क्वेश्चन के आंसर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हैं. एट क्वेश्चन इज़, व्हाट डू यू मीन बाय कस्टमर सर्विस.
तो आपको मालूम ही होगा कि कस्टमर सर्विस क्या होता है, बट यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू द एविएशन इंडस्ट्री। एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड कस्टमर सर्विस क्या होता है वो आपको आंसर देना है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन इज़ टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर फैमिली। गाइज इस आंसर का वीडियो मैं अलग से बना के डाल दूँगी, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये जितने भी एयरलाइंस के कैबिन क्रू इंटरव्यू होते हैं अक्सर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो मैं इसका सेपरेट वीडियो बना के डाल दूँगी इस आंसर के लिए। 10th क्वेश्चन इज़ इफ़ यू गेट योर फर्स्ट सैलरी देन व्हाट यू कैन डू विथ इट। तो आपको रट के नहीं देना ये आंसर, आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देना है कि अगर आपकी फ़र्स्ट सैलरी आपके हाथ में आए तो आप उसको क्या करेंगे। लेकिन हाँ, आपको प्रैक्टिकल वाइज आंसर देना है और ऑनेस्टी के साथ देना है। क्वेश्चन को ऐसे आंसर दे सकते हैं दैट हाफ सैलरी यू विल कीप इट विथ यू एंड हाफ यू विल गिव टू योर फैमिली। तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं या अपने पर्सनली कुछ बता सकते हैं, बट इट शुड बी प्रैक्टिकल एंड ऑनेस्टी के साथ। कैंडिडेट्स ये आंसर देते हैं कि मैं ऑर्फनेज में डोनेट करना चाहूँगी अपना फर्स्ट सैलरी। गाइस, मैं उन कैंडिडेट्स को बता दूँ कि आप ये आंसर ना दें, आप रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मैंने भी यही आंसर दिया था कि ऑर्फनेज में डोनेट करना है फर्स्ट सैलरी, सो आई गॉट रिजेक्टेड। तो आपको ये आंसर नहीं देना है। फिर मैंने अपने फ्रेंड से पूछा था कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट करा कि आपको ऐसे करके आंसर देना है जैसे कि मैंने आपको बोला। 11th क्वेश्चन इज़ इन अपकमिंग 5 years वेयर डू यू सी योरसेल्फ। दिस क्वेश्चन इज़ अ कॉमन क्वेश्चन। जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको बोले हैं वो सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं, वो पूछे ही जाते हैं हर एयरलाइंस में कैबिन क्रू इंटरव्यू में। तो योर 11th क्वेश्चन इज़ इन अपकमिंग 5 years वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ। क्वेश्चन इज़ हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर दिस इंटरव्यू। गाइज, आपको सच ही बोलना है। अगर आप यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, जैसे मेरा वीडियो आप देख रहे हो, आपको हेल्प मिल रही है, तो आप उसमें मेंशन कर सकते हो कि आई प्रिपेयर्ड दिस इंटरव्यू बाय सीइंग यूट्यूब वीडियोस एंड ऑल, बाय रिसर्चिंग ऑल द क्वेश्चंस इन दैट आस्क्ड इन कैबिन क्रू इंटरव्यू। आप ऐसे करके बोल सकते हो उनको ऑनेस्टी। ज़रूरी नहीं है कि आप झूठ बोलो। आप जैसे अगर यूट्यूब वीडियो देख रहे हो आप वो भी बोल सकते हो। अगर आपको कोई फ्रेंड्स वगैरह कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप वो भी मेंशन कर सकते हो। This all are basic questions that I have shared with you. These questions asked in every airline cabin crew interview. और guys, मैं ये एडवाइस देना चाहूँगी कि आप अगर कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप अपने HR को ऑनेस्टी के साथ आंसर दें, क्योंकि वो जज कर लेते हैं कि आप किस वे में आंसर दे रहे हो। आप ऑनेस्टी के साथ आप आंसर दे रहे हो या आप रट के आंसर दे रहे हो। तो इसी कारण कुछ कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो जाते हैं और मैसेज भी करते हैं कि दीदी मैं रिजेक्ट हो गई हूँ, मैंने इस क्वेश्चन का ये आंसर दिया था। तो मैंने जो भी मैंने क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करें, मैंने उनके आंसर्स भी बता दिए हैं कि आपको कैसे आंसर देने हैं। और जिनको भी कैबिन क्रू रिलेटेड डाउट्स है या अपकमिंग इंटरव्यू डेट नहीं मालूम है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और गाइस, अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी दैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड एन्जॉय योर डे।